Genius, 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 genius gone. Genius, 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 genius gone. क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। With these beautiful inspiring lines, I welcome all the participants present over here to grace the stage of Genius Con Season 3 under Sanskrit Production and Abhi Tak channel. प्रारंभिक दौर के हजारों प्रतिभागियों में से आपने अपना विशेष स्थान बनाया। सभी प्रथम चरण क्वार्टर फाइनल को पास करते हुए दूसरे चरण सेमीफाइनल तक पहुंचे। एंड आफ्टर जस्ट प्रूविंग योर जीनियस ओवर देयर दैट यस यू ऑल आर मैन ऑफ जीनियस, यू हैव gathered up so much knowledge that you succeeded to come up to this level of pre-finale. So before coming to the rules and regulation of it, I would like to request all the participants over here one by one to introduce themselves before us. So ये पहला प्रयास हमारे प्रथम प्रतिभागी की ओर आता है। वह अपना हम सबको परिचय देकर बताएं कि वो कहाँ से हैं और किस विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। Hello, my name is Ravikant Singh. I am studying in class 12th in St. Mary's Convent Senior Secondary School, Dhampur. The very first contestant, Mr. Ravi Singh, is from St. Mary Convent School, Dhampur. So now it is the turn of second participant to introduce himself before us. Myself, Muhammad Anas Ansari from KS Children Academy, Kotwali. Mr. Anas, he is from KS Children Academy, Kotwali, representing the school over the stage of Genius Con Season 3. मेरा आग्रह है अब प्रतिभागी नंबर 3 से कि वह अपने बारे में अपना परिचय देकर हम सबको इस विषय में जानकारी दें। प्रतिभागी नंबर 3। My name is Manish Kumar, MQ Inter College, चारा विद्यालय। हमारे बीच में तीसरे प्रतिभागी हैं मिस्टर मनीष कुमार, और ये MQ इंटर कॉलेज चौहारा का प्रतिनिधित्व इस अभी तक चैनल के मंच पर कर रहे हैं और NCC के कैडेट के रूप में ये इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मनीष कुमार, आपका यहाँ मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सो नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ कंटेस्टेंट नंबर 4 टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, एंड शी इज़ द ओनली गर्ल contestant among all these participants present over here. So I request contestant number 4 to introduce herself. Hello everyone, my name is Muskan Sharma. I read in class 11 in Lala Kedarnath Saraswati Balika Vidya Mandir, Dhampur. लाला केदारनाथ सरस्वती विद्या मंदिर धामपुर से
पधारी हैं हमारे बीच में मुस्कान शर्मा। ये हमारी इस प्रतियोगिता की चौथी प्रतिभागी हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रतिभागी नंबर 5 से अपना परिचय हम सबके समक्ष रखें। प्रतिभागी नंबर 5। Hello everyone, myself Naeemuddin Safi from Indian Public Inter College, Block Jalilpur. He is Mr. Naeemuddin Safi and he is from Jalilpur block and Indian Public School is there to represent him. And now it is the turn of the last participant who is here to grace the stage of Abhitak channel, and it is the contestant. It is the contest of Genius Con Season 3. So please introduce yourself. Hello everyone, myself Abdul Rahman. I am studying class 9th at Simra International Senior Secondary School. I am from Sherkot. Mr. Abdul Rahman is the last and sixth contestants present over here. He is representing Simra International School शेरकोट। प्रतिभागियों ने सभी ने अपना अपना परिचय हम सबके समक्ष रखा और संस्कृत प्रोडक्शन और अभी तक चैनल की ओर से इस जीनियस कॉन सीजन 3 के मंच पर मैं एक बार पुनः उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। So all the contestants, you have already passed 2 rounds, that is quarter final round and the other is semi-final round, and now you are here on this third round, that is known as pre-final round. So before coming to the questionnaire, I should tell you all about the rules and regulation of this contest. Total 24 questions will be asked here on this pre-final round on 2 segments of 12 questions each. 12 questions on the first segment and the 12 questions on the second. Every contestant will have the opportunity to answer 4 questions. हर एक प्रतिभागी को 4 प्रश्नों का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त होगा और यह एक प्रतिभागी को बारी बारी से अपने प्रश्नों के उत्तर देने के अवसर यहाँ प्राप्त होंगे। पहले कहने पर, मेरे निर्देश पर कि आपका समय शुरू होता है अब। जैसा ही मैं यहाँ से निर्देश दूंगा, सबसे पहला प्रतिभागी जो भी बजर दबाएगा उसी को पहले 2 प्रश्नों का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से 1 by 1 all the contestant whosoever comes first to put the buzzer will have the opportunity to make the answer of 2 questions. पहले 2 प्रश्न पहले सेगमेंट में और बाद में 2 प्रश्न दूसरे सेगमेंट में हर प्रतिभागी को मिलेंगे जिसका उत्तर उनको देना होगा। इसी बीच में जो प्रतिभागी अपने साथ में अपने गार्जियंस को लाए हैं उनको किसी भी एक प्रश्न पर, 4 प्रश्न जो उनसे पूछे जाएंगे उसमें अगर किसी एक प्रश्न पर उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ भ्रम है, कुछ कंफ्यूजन है एंड इज नॉट कमिंग टू द राइट आंसर, वह अपने साथ आए हुए अपने गार्जियन का इसमें सहायता उनसे ले सकते हैं और आपस में विचार विमर्श करने के बाद आंसर केवल वही प्रतिभागी देगा, गार्जियन नहीं देंगे। वो केवल उनको बताने में सहयोग करेंगे अगर उनको उसका सही उत्तर मालूम है, और अगर उसको उत्तर नहीं मालूम है तो वह उस प्रश्न को स्किप कर सकता है। वो कंटेस्टेंट बोल सकता है कि मैं उस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं रखता हूँ और मैं इसको स्किप करता हूँ, तो ही विल हैव द चांस टू स्किप द, इफ यू मेक द करेक्ट आंसर एज यू हैव ऑलरेडी मेड, you will get 20 marks out of that, and if you fail to make the correct answer, you give the wrong answer, you will have to lose 10 marks. 20 अंक सही उत्तर पर अर्जित करना और 10 अंक गलत उत्तर देने के बाद खो देना। So once again I welcome all the contestants over here, and at the same time I wish you all the best before coming to the questionnaire. जैसा मैं सभी प्रतिभागियों को स्पष्ट कर चुका हूँ कि जब मैं आपको यहाँ से निर्देश दूंगा कि आपका समय शुरू होता है अब, उसके बाद प्रतिभागी अपना बजर दबाएंगे। जो प्रतिभागी सबसे पहले बजर दबाएगा उसी को ही आरंभिक 2 प्रश्नों का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो सभी प्रतिभागी नाउ बी अलर्ट एंड पुट योर फिंगर्स ऑन द बजर, और जैसा ही मैं आपको निर्देश दूंगा यू हैव टू बी अलर्ट। आपका समय शुरू होता है अब। इट इज़ द कंटेस्टेंट नंबर 4, दैट इज मुस्कान शर्मा बिफोर अस, and she is so much alert as well as I will say she is so much fortunate to make her move first. सबसे पहले प्रतिभागी नंबर 4 मुस्कान शर्मा ने हमारे समक्ष बजर दबाया, तो शुरुआती प्रश्न और उत्तर उनके समक्ष होंगे।
and she would be the very first to start the questionnaire with the very first question. So it is contestant 4 who has put the buzzer very first time. Now I start the questionnaire that consists of 24 questions in 2 segments, 12 question each. जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और क्योंकि प्रतिभागी नंबर 4 ने सबसे पहले बजर दबाया, उनको यह शुभ अवसर प्राप्त होता है सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देने का। आशा करते हैं कि हमें प्रश्नावली में सभी प्रश्नों के सही उत्तर मिलते रहेंगे और प्रतिभागी अधिक से अधिक अंक पाकर इसमें श्रृंखला में आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक बार क्वेश्चन शुरू करने से पहले सभी को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए मैं प्रश्नावली की शुरुआत करता हूँ। Contestant 4, the very first question that appears on the screen should be alert now and go through the question. And the question appears on the screen is, the very first question is, what's the name of Gandhiji's autobiography? What's the name of Gandhiji's autobiography? And the 4 options are A. Wing of Fire, B. Gitanjali, C. My Experiment with Truth, and D. Two States. प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके समक्ष है। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? You have to go through the 4 options. इसके 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। A. Wings of Fire, B. गीतांजलि, C. My Experiment with Truth, D. Two States. विंग्स ऑफ फायर, गीतांजलि, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ एंड 2 स्टेट्स। आपको बताना है मुस्कान की आपके विचार से इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है? सर ऑप्शन बी गीतांजलि। मुस्कान कहती हैं कि उनकी बुद्धि बल के आधार पर जो इस प्रश्न का सही विकल्प है वह है ब गीतांजलि। देखते हैं कि मुस्कान ने इस प्रश्न का सही उत्तर देने में कहाँ तक सफलता पाई है। So we move to the correct answer to the question, and the correct answer is C. My Experiment with Truth. आपने मुस्कान बी गीतांजलि कहा। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की वो महान रचना है जिस पर उनको भारतवर्ष के प्रथम इस महान नागरिक बनने का सम्मान मिला कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। गीतांजलि के आधार पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और गांधी जी की जो अपनी आत्मकथा है उसका नाम है My Experiment Truth. So sorry to say, by making wrong answer, you have lost 10 marks on this very question. No problem. Still you are having 3 more questions to answer. ये पहला प्रयास आपका सफल नहीं हो पाया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को, ध्यान दें अपने स्क्रीन पर। और अगला प्रश्न आपके समक्ष रखा जाता है यह। And the very second question is, which line of latitude divides India into 2 halves? Just read the question once again. Which line of latitude divides India into 2 halves? And the 4 options are A. Equator, B. Tropic of Cancer, C. Arctic Circle, D. Tropic of Capricorn. These are the 4 options. इसका हिंदी रूपांतर आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर आता है। निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश भारत को 2 विभागों में विभाजित करता है? और इस प्रश्न के 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। आ. भूमध्य रेखा, ब. कर्क रेखा, स. आर्कटिक व्रत, द. मकर रेखा। ये 4 विकल्प हैं। आपको देखना है कि इसमें कौन सा विकल्प आपके बुद्धि बल के आधार पर सही उतरता है। सर ऑप्शन बी कर्क रेखा। बड़े विश्वास के साथ मुस्कान ने इस प्रश्न का विकल्प सबके सामने रखा। वह कहती हैं कि कर्क रेखा, ब ऑप्शन उनके विचार से इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखते हैं कि मुस्कान 20 अंक अर्जित होने में सफल होती हैं। ये इस प्रश्न से सिद्ध होगा। प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बी. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हर सेकंड मूव इज प्रूव्ड एज राइट एंड बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन शी हैज अर्न्ड 20 मोर पॉइंट्स दिस टाइम। पिछली बार उन्होंने अंक खोए, लेकिन अब के सही उत्तर देने पर उन्होंने 10 अंक अर्जित किए। बधाई मुस्कान आपको, आपने सही उत्तर दिया सही प्रश्न का। आगे भी आप बाकी प्रश्नों का इसी प्रकार से सही उत्तर देकर अंकों की तालिका में आगे बढ़ें। मुस्कान के इन 2 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद एक बार पुनः वह प्रक्रिया शुरू होती है। एंड द रेस्ट 5 कंटेस्टेंट, जो शेष 5 हमारे प्रतिभागी हैं, वह फिर अलर्ट हों। दे माइट बी अलर्ट विद देयर फिंगर्स। और जैसा ही मैं बोलूँगा, यहाँ से निर्देश दूंगा, उसके आधार पर आप बजर दबाएंगे और उसी प्रतिभागी को फिर अवसर मिलेगा
अगले 2 प्रश्न का उत्तर देने का। सो बी अलर्ट नाउ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ बिकॉज सेकेंड कंटेस्टेंट मिस्टर अनस ही हैज पुट द बजर, अब उनको ये अवसर प्राप्त होगा अगले 2 प्रश्नों का उत्तर देने का। सो मिस्टर अनस, नाउ यू अलर्ट and your eyes must be focused on your screen. So now the very first question for Mr. Anas, though third question of the questionnaire, appears on the screen, and the question is, when was late Prime Minister Rajiv Gandhi assassinated? The question is, when was late Prime Minister Rajiv Gandhi assassinated? And the 4 options are A. 24th May 1991, B. 21 May 1991, C. 26 May 1993, एंड 4th दैट इज 18 मई 1994। और इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके स्क्रीन पर आता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब हुई, आपको वो तारीख बतानी है और 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला 24 मई 1991, ब 21 मई 1991, स 26 मई 1993, द 18 मई 1994। सो मिस्टर अनस, अपना पूर्ण प्रयास करें इसका सही विकल्प ढूंढने का और हम सबको बताएं कि आपके अनुसार इसका सही विकल्प क्या है। सर आंसर डी, 18 मई 1994। According to Anas, he says that the option D, 18 May 94, is the correct date when our late Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. So we should move to the correct answer to the question to know whether it is right or not. So the correct option is B, 21st May 1991. Sorry to say that you could not come to the right answer of the question, and by making the wrong answer you have lost 10 marks. And be alert next time. It is the second question that is coming before you, so you should just use your knowledge and then come to the very next answer. So the next question that appears before you, just go through the question. That is the question: which fighter plane of Indian Air Force had its farewell after the arrival of Rafale fighter plane? I am reading the question once again. Which fighter plane of Indian Air Force had its farewell after the arrival of Rafale fighter plane? And the 4 options are A, fighter plane, B, MiG-27, C, Jumbo 707 and D, MiG-22। प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें और समझें इसको अच्छी तरह से। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल के आने के बाद किस विमान की विदाई हुई? प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा और इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। अ, फाइटर प्लेन, ब, MiG-27, स, जंबो 707, द, MiG-22। आपके बताना है कि किस विमान की विदाई हुई लड़ाकू विमान राफेल के हमारी वायुसेना में आने के बाद। सर आंसर डी, 18 मई 1994। अनस बोलते हैं कि उनके विचार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प स, जंबो 707। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर बताने में कहाँ तक अनस सफल हुए हैं। एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन इज, दैट इज आंसर नंबर बी, MiG-27। अभी अगर आप लोगों ने पीछे न्यूज़पेपर पढ़े हो या टीवी पर न्यूज़ देखी हो तो कुछ ही दिनों पहले ही इस प्लेन की विदाई हुई और MiG-27 ने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। कारगिल युद्ध में इसने हमारी सेना को विजय दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके विषय में काफ़ी चर्चा न्यूज़पेपर और टीवी स्क्रीन्स पर हुई थी। सो अनस, वंस अगेन आई एम सॉरी टू से दैट योर सेकंड आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग, and by making the wrong answer you have lost 10 marks, no doubt. Still you are having 2 more questions. अभी आपके सामने 2 प्रश्न और आएंगे दूसरे राउंड में, उनके सही उत्तर दें और अंक अर्जित करने में सफलता पाएं। So once again it is the turn for the 4 other participants, जो 4 शेष प्रतिभागी रह गए हैं बजर दबाने से। अब ये है उनकी बारी है। सब लोग तैयार हो जाएं। मैं जैसे यहाँ से निर्देश दूंगा आपका समय शुरू होता है अब। It is contestant number 6. Mr. Abdul Rahman is there. He is from Simra International School, Sirkot. So अब्दुल रहमान ने क्योंकि इस बार बजर दबाने में सबसे पहले अपने आप को दर्शाया है, सो मिस्टर अब्दुल रहमान, नाउ इट इज़ योर टर्न टू मेक द आंसर ऑफ द कमिंग 2 क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, उनका उत्तर देने में जल्दबाजी न दिखाएं, ध्यान से उसका उत्तर दें ताकि आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। एंड इट इज़ फॉर मिस्टर अब्दुल रहमान, कंटेस्ट नंबर 6 who has put the buzzer. So the next question is there on your screen and please make it sure. The very next question is, which of these is a Hindustani word for coincidence? Which of these is a Hindustani word for coincidence? And the four options are A. इंतकाम, B. इजाज़त, C. इनायत and D. इत्तफाक. These are the four options and the Hindi version of the question is, निम्नलिखित में कोइंसिडेंस के लिए कौन सा हिंदुस्तानी शब्द प्रयोग होता है? आपको इन चार विकल्प में इसका हिंदुस्तानी शब्द बताना है और चार विकल्प हैं अ. इंतकाम, ब. इजाज़त, स. इनायत और द. इत्तफाक. सो अब्दुल रहमान, आप बताएं हम सबको कि आपके विचार से इसमें कौन सा विकल्प सही उत्तर है? दे इत्तफाक. अब्दुल रहमान बोलते हैं कि उनके विचार से कोइंसिडेंस के लिए द इत्तफाक हिंदुस्तानी शब्द प्रयोग होता है। देखते हैं कि अब्दुल रहमान इस प्रश्न का उत्तर कहाँ तक सही दे पाए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न के सही उत्तर की ओर। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, इत्तफाक। एंड द इंग्लिश वर्ड दैट इज कोइंसिडेंस एंड इन उर्दू वी कॉल इट इत्तफाक। जो अचानक ही कोई कार्य हो जाए उसको इत्तफाक बोला जाता है कि दिस हैज़ बीन डन कोइंसिडेंटली। सो ही इज़ राइट टू से टू मेक द करेक्ट आंसर। और सही उत्तर देकर अब्दुल रहमान आपने अर्जित किए हैं 20 अंक। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। देखते हैं कि इसका भी सही उत्तर आप दें ऐसी आशा के साथ। देखिए इस अगले प्रश्न को। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Indian player is known as the player of helicopter shot? And the four options are there on the screen. A. Viren Sehwag, B. Sachin Tendulkar, C. महेंद्र सिंह धोनी and D. रोहित शर्मा। और प्रश्न का जो हिंदी रूपांतर आपके स्क्रीन पर है, किस भारतीय खिलाड़ी को हेलीकॉप्टर शॉट खेलने वाले खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है? प्रश्न हिंदी में बहुत सरल है और इसके चार विकल्प हैं अ. वीरेंद्र सहवाग, ब. सचिन तेंदुलकर, स. महेंद्र सिंह धोनी, द. रोहित शर्मा। और आपको अब्दुल रहमान ने बताना है कि इन चार में कौन सा खिलाड़ी हेलीकॉप्टर शॉट खेलने वाले खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है? से महेंद्र सिंह धोनी. अब्दुल रहमान says that yes, it is महेंद्र सिंह धोनी. सी ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हिम। बड़े विश्वास के साथ उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है। देखते हैं उनका विश्वास उनको अंक अर्जित कराने में कहाँ तक सफल होता है। प्रश्न का सही उत्तर है सा, महेंद्र सिंह धोनी का करेक्ट उत्तर। अब्दुल रहमान, क्या क्रिकेट में आपकी विशेष रुचि है जो आपने बहुत जल्दी और बड़ा सटीक उत्तर दिया इस प्रश्न का? यस सर, आई ऑलवेज लाइक क्रिकेट. जी, तो महेंद्र सिंह धोनी को किस निकनेम से जाना जाता है ये भी आप जानते होंगे? सो माही. माही, यस, वेरी राइट आंसर। यस यस, ये शो करता है कि आपको सचमुच क्रिकेट खेलने में भी रुचि है और क्रिकेट के बारे में जानकारी रखने में रुचि है। ये दो सही उत्तर आपने दिए और दूसरा सही उत्तर देने के बाद भी आपने अर्जित किए हैं 20 अंक। बहुत बहुत बधाई आपको। सो इन दिस वेरी राउंड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले जो हमारे 3 प्रतिभागी रह गए हैं, अब ये उनकी बारी आती है बजर दबाने के लिए और वो तीनों प्रतिभागी अलर्ट हो जाएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इट इज़ द पार्टिसिपेंट नंबर 3 मिस्टर मनीष हु सक्सीडेड दिस टाइम टू पुट द बजर। उन्होंने बजर दबाने में सफलता पाई और इसीलिए अब ये उनकी बारी आती है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने के लिए, जो उनके लिए प्रश्न नंबर 1 है। मनीष, अब आपके सामने आपके 2 प्रश्न आएंगे। अपने टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखें और प्रश्न का सही उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करें। प्रश्न आपके समक्ष आता है आपके टीवी स्क्रीन पर। यह है, इन हेल्थ डिपार्टमेंट PHC इज नोन एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर। In the same way, what is the full form of CHC? And the 4 options are A. Community Health Consumer, B. Community Health Center, C. Community Hygienic Center, D. Community
ह्यूमन सेंटर। और इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने आपके स्क्रीन पर आता है। स्वास्थ्य विभाग में पीएचसी को प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहा जाता है। इसी तरह से सीएचसी का पूर्ण रूप क्या है? ये 4 विकल्प आपके सामने और आपको बताना है कि इसका पूर्ण रूप क्या है। पहला विकल्प है कम्युनिटी हेल्थ कंज्यूमर, ब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, स कम्युनिटी हाइजेनिक सेंटर, द कम्युनिटी ह्यूमन सेंटर। तो मनीष आपको इन 4 विकल्पों में से ढूंढना है कि सही विकल्प क्या है, ताकि आप 20 अंक अर्जित कर सकें। हमें बताएं आपके विचार से इसका सही विकल्प। सर देख कम्युनिस्ट ह्यूमन सेंटर। मनीष कहते हैं कि सीएचसी की जो फुल फॉर्म है इसका पूर्ण रूप है द कम्युनिटी ह्यूमन सेंटर। देखते हैं कि मनीष ने इस प्रश्न का सही उत्तर कहाँ तक सही दिया है। और प्रश्न का सही उत्तर है बी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सीएचसी द फुल फॉर्म सीएचसी इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सो मनीष, सॉरी टू से दैट बाय मेकिंग द रॉन्ग आंसर यू हैव लॉस्ट 10 मार्क्स। आप सही उत्तर नहीं दे पाए और आपको 10 अंकों से हाथ धोना पड़ा। कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिए और देखिए कि दूसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो प्रश्न आपके समक्ष आता है यह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी MPs ऑफ बीजेपी आर देयर इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट? हाउ मेनी MPs ऑफ बीजेपी आर देयर इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट? द 4 ऑप्शंस आर A 273, B 303, C 313, D 323। प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़िए और समझिए। वर्तमान में देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद हैं? और 4 विकल्प आपके सामने हैं। A 273, B 303, सा 313 और द 323। आपको बताना है कि इसमें सही सदस्य संख्या कौन सी है। सर बैक 303। मनीष कहते हैं कि वर्तमान पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के 303 सदस्य हैं। देखते हैं कि उनका ये प्रयास उनको कहाँ तक सफलता दिलाता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। यस, देयर आर 303 पार्लियामेंटेरियंस ऑफ बीजेपी पार्टी इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट। 303 उन्होंने बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया और यह सही उत्तर देकर उन्होंने कमाए हैं अपने लिए 20 अंक। मनीष, क्या राजनीति में कोई आपकी रुचि है? क्योंकि आपने इस राजनीतिक प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। सर रुचि तो नहीं है, पर ये न्यूज़ चैनल पे देखते हैं तो जब वोटिंग होती है तो सर जब से पता है। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने जिन दिनों इलेक्शंस की इस बात की चर्चा चल रही थी कौन सी पार्टी ने कितने पार्लियामेंटेरियन पाने में सफलता पाई है, तो शायद मनीष जी उन दिनों टीवी न्यूज़ को देख रहे थे और उसी से उन्होंने ज्ञान अर्जित करके आज उस ज्ञान ने उनको 20 अंक पाने में सफलता दिलाई। एक बार आपको फिर बधाई। सो नाउ 2 other contestants are left now to come to the very questions of the first segment. अब 2 प्रतिभागी शेष हैं इस पहले सेगमेंट के 12 प्रश्नों के प्रश्न उत्तर के क्षेत्र में। जो शेष 2 प्रतिभागी हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने फिंगर्स को अलर्ट रखें, क्योंकि उनको अवसर मिलेगा अपने 2 प्रश्नों का उत्तर देने का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, it is our contestant number 1, Mr. Ravikant Singh, who has put the buzzer this time. So now you'll have the opportunity to make the answer of these 2 questions. So Ravikant, now it is your turn. Be alert and go through the questions. And the very first question appears on the screen. And the question is, Baharo Phool Barsao, Mera Mehboob Aaya Hai. The question is related to Bollywood. Is the song of which film? You have to tell the name of the film. And the 4 options are A. सूरज, B. मेरे महबूब, C. राम और श्याम, D. उपकार। प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने है। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, यह किस फिल्म का गाना है? और 4 फिल्मों के नाम आपके सामने हैं। आ सूरज, ब मेरे महबूब, सा राम और श्याम, द उपकार। आपको बताना है कि आपके अनुसार इन 4 में कौन सी वो फिल्म है जिससे ये गाना संबंधित है। सर लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा।
लगता है कि रविकांत को इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं मालूम, हालांकि वो अपनी बुद्धि पर जोर देते हैं। और रविकांत, आपके साथ साथी के रूप में किसको लाए हैं? Sir, my father. Because Ravikant's father is there, present over here, so I request his father just to help your child to make the correct answer to the question. कृपया इनसे विचार विमर्श करके प्रश्न का सही उत्तर बताने में अपना सहयोग दें। थैंक यू सर। दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और शायद पिताजी ने अपने पुराने अनुभवों का कोई लाभ अपने पुत्र को देने का प्रयास किया है। सो नाउ मिस्टर रवि, आर यू इन अ मूड टू मेक द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन? Yes, sir. I would like to go with option A, Suraj. After making discussion and consultation with his father, I think Mr. Ravi has come to some conclusion, and the conclusion is rather very concrete. उन्होंने कहा है कि इसका सही उत्तर है आ, सूरज। देखते हैं कि पिताजी ने उनका कहाँ तक सहयोग किया है अंक पाने में। एंड द करेक्ट आंसर इज सूरज। यस, वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। धन्यवाद रवि के पिताजी को, उन्होंने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने पुत्र को 20 अंक पाने में सफलता दिलाई। सो दैट्स अ वेरी करेक्ट आंसर। बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर, रवि, you have earned 20 marks. So in the same fashion, I think that yes, you will make the correct answer of the next question. And the very next question appears on the screen is, in which saint's hermitage, read the question attentively, in which saint's hermitage Bharat, the son of King Dushyant and Shakuntala, was born? And the four options are A. Maharshi Kanyap Rishi, B. Maharshi Valmiki, C. कण्व ऋषि एंड डी इन विदरकुटी। इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? हिंदी में प्रश्न बहुत सरल है, आपकी समझ में आया होगा। इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। अ. महर्षि कश्यप ऋषि, ब. महर्षि वाल्मीकि, स. कण्व ऋषि, द. विदुर कुटी। में आपको बताना है कि भारत का जन्म इन 4 में कौन से विकल्प में हुआ था? Sir, A, Maharishi Kashyap. रवि says yes, according to his knowledge, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उनके ज्ञान के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अ। भारत का जन्म महर्षि कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ, ऐसा रवि कहते हैं। देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका प्रश्न का सही उत्तर है सी, कण्व ऋषि। भरत का जन्म कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ था। अपने आप में प्रश्न कठिन है और क्योंकि ये प्राचीन हमारी संस्कृति से प्रश्न आता है, निश्चित रूप से कठिन प्रश्न, लेकिन उन्होंने अपना पूर्ण प्रयास किया। उनका प्रयास बहुत सराहनीय है, हालांकि वह सही उत्तर देने में सफल नहीं हुए। सो सॉरी टू से रवि, बाय मेकिंग रॉन्ग आंसर ऑफ द क्वेश्चन यू हैव लॉस्ट 10 मार्क्स। नो प्रॉब्लम, स्टिल यू आर हैविंग 2 मोर क्वेश्चंस टू आंसर। उसमें सही उत्तर देकर अंक तालिका में आगे बढ़ें, ऐसा मेरी आपको आशा है। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रतिभागी की ओर। इस राउंड के पहले 12 प्रश्नों में अब उनका इस राउंड में प्रतिभागी नंबर 5 हैं हमारे बीच में, जो अब इन 2 प्रश्नों का उत्तर हमारे समक्ष रखेंगे। हमारे बीच में प्रतिभागी नंबर 5 मिस्टर नईमुद्दीन, ये इंडियन पब्लिक स्कूल जलीलपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब बारी आती है मिस्टर नईमुद्दीन की अपने 2 प्रश्नों का उत्तर देने की। तो नईमुद्दीन, आप अपना ध्यान केंद्रित करें अपने स्क्रीन की ओर और आपके समक्ष आपका पहला प्रश्न आता है यह, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन द ईयर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन द ईयर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक एंड द 4 ऑप्शंस आर ए. राजीव गांधी, बी. मनमोहन सिंह, सी. नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड डी नन ऑफ दीज। प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें और समझें। भारतवर्ष के गणतंत्र बनने के वर्ष में, भारतवर्ष के गणतंत्र बनने के वर्ष में किस प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था? और 4 नाम आपके सामने हैं। आ. राजीव गांधी,
ब मनमोहन सिंह, स नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री का जन्म भारतवर्ष जब गणतंत्र बना उस वर्ष हुआ था। से नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यस, नेमुद्दीन कहते हैं कि उनके विचार से जब भारतवर्ष गणतंत्र बना उस समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ था। उनके अनुसार विकल्प सा अपने आप में इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान का कहाँ तक सही हमें परिचय दिया और प्रश्न का सही उत्तर है सी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज वेरी राइट टू मेक द करेक्ट आंसर। उनके अनुसार नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये उस वर्ष में जन्मे थे जब भारतवर्ष को गणतंत्र घोषित किया गया। इट वाज 1950। सभी जानते हैं कि 1950 में भारत गणतंत्र घोषित हुआ, जिसको हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। और उस वर्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। सही उत्तर देकर नेमुद्दीन जी आपने कमाए हैं 20 अंक। इसी प्रकार से मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे आग्रह करता हूं कि अगले प्रश्न का भी सही उत्तर दें और अंक तालिका में आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है विच ऑफ दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच ऑफ दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी is named after the first Prime Minister of India, and the 4 options are A. DU, B. JNU, C. IGNOU, or D. BHU. These are the 4 options, and the Hindi version of the question is निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय विद्यालय भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर है। आपको इन 4 ऑप्शन में करेक्ट नाम बताना है। A. DU, ब JNU, सा इग्नू और द BHU। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके विचार से सही उत्तर है इस प्रश्न का? सर ब JNU। नेमुद्दीन कहते हैं कि ब ऑप्शन JNU यह इस प्रश्न का सही विकल्प है। और देखते हैं कि नेमुद्दीन ने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर है उसका सही उत्तर दिया है या नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर, और प्रश्न का सही उत्तर है बी JNU। जैसा DU का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU का मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के स्वतंत्रता पाने के बाद सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने। बहुत अच्छा, एक बार आपको बहुत बहुत बधाई सही उत्तर देने के। उन्होंने नेमुद्दीन ने दूसरे प्रश्न का भी सही उत्तर दिया और इसी प्रकार से सही उत्तर देने के कारण उन्होंने अर्जित किए हैं 20 और अधिक अंक। और इस प्रकार से नेमुद्दीन अंकों की श्रेणी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर, क्योंकि हमारा 24 प्रश्नों में से 12 प्रश्न का पहला सेगमेंट समाप्त हुआ। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपके सामने आएंगे, कहीं न जाएं, प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। So once again, I welcome all the contestants after this break. सभी प्रतिभागी इस पहले सेगमेंट में जो उन्होंने 12 प्रश्नों के उत्तर दिए, सबको अपने अपने अंक जानने की उत्सुकता होगी। सो आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट मिस्टर रविकांत, बाय मेकिंग ऑल हिज एफर्ट्स ही हैज अर्न्ड 10 पॉइंट्स। उनको 10 अंक अर्जित किए हैं। लेकिन हमारे दूसरे प्रतिभागी मिस्टर अनस ने 2 प्रश्नों का गलत उत्तर देकर 20 अंक खोए। प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर मनीष और प्रतिभागी नंबर 4 मिस मुस्कान, इन्होंने अर्जित किए हैं अभी तक इस पहले सेगमेंट में 10 अंक। और जो हमारे प्रतिभागी नंबर 5 मिस्टर नेमुद्दीन और प्रतिभागी नंबर 6 मिस्टर अब्दुल रहमान, इन्होंने
दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देकर अर्जित किए हैं 40-40 अंक। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। So now after coming to know our score, what we have earned, what we have lost regarding marks. So once again we start the questionnaire from question number 13. और जैसा मैंने पहले बताया है कि मैं जब यहाँ से निर्देश दूंगा तो जो भी प्रतिभागी सबसे पहले बजर दबाएगा उसी को अपने क्रम के अगले दो प्रश्न नंबर 3 और 4 जो उसके क्रम में हैं उसका उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा। तो सब लोग अलर्ट हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। ये प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर रविकांत हैं जिन्होंने अपने बजर दबाने के प्रयास में सफलता पाई। So now he gets the chance to make the answers of the remaining 2 questions, that is question number 3 and 4 for him. So रविकांत ध्यान दें अपने स्क्रीन पर, आपके तीसरा प्रश्न आपके सामने आपके हिस्से का आता है यह। And the very next question is, what is the name of Air Chief Marshal? You have to answer the name and the 4 options are A. General Bipin Rawat, B. Colonel J.S. Bhadauria, C. General V.K. Singh and D. Rakesh Kumar Singh Bhadauria. These are the 4 options. और प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। वायुसेना अध्यक्ष का नाम क्या है? आपको इनका अध्यक्ष का नाम बताना है और आपके सामने इसके 4 विकल्प हैं। आ. जनरल बिपिन रावत, ब. कर्नल J.S. भदौरिया, स. जनरल V.K. सिंह, द. राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसमें से आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। Sir, I think it's B. Colonel J.S. Bhadauria. According to Mr. Ravi, he says that the correct answer of the question is B. Colonel J.S. Bhadauria is our Air Chief Marshal. So let's see whether he is correct to make the answer, and the correct answer is D. Rakesh Kumar Singh Bhadauria. It is the correct answer. So Ravi, sorry to say, आपने बहुत सराहनीय प्रयास किया, बहुत विश्वास के साथ उत्तर दिया, लेकिन अफसोस कि आप सही उत्तर देने में सफल नहीं हुए और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये हमारे वर्तमान में हमारे हिज एयर चीफ मार्शल मिस्टर राकेश कुमार सिंह भदौरिया। सो सॉरी टू से बाय मेकिंग द रॉन्ग आंसर यू हैव लॉस्ट 10 मार्क्स। कोई बात नहीं, अभी एक प्रश्न आपके सामने और है, देखते हैं इस प्रश्न को जो आपके स्क्रीन पर आता है यह। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिंगर हैज संग द फेमस सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए? दैट इज द सॉन्ग फ्रॉम बॉलीवुड एंड आई थिंक निश्चित रूप से बड़ा लोकप्रिय गीत रहा होगा, मैं तो नहीं कह सकता लेकिन जैसा है। और इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आ. ऋचा शर्मा, बी. ममता शर्मा, सी. नेहा कक्कड़ एंड डी. तुलसी कुमार। दीज आर द 4 ऑप्शंस एंड द हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन इज, मशहूर गीत मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए किस गायिका ने गाया है? आपको इस गायिका का नाम बताना है और 4 नाम आपके सामने हैं। आ. ऋचा शर्मा, ब. ममता शर्मा, सा. नेहा कक्कड़, द. तुलसी कुमार। यू हैव टू मेक द करेक्ट नेम ऑफ दिस सिंगर ऑफ द सॉन्ग। Sir, A. Richa Sharma. रवि कहते हैं कि इस गीत के जो गायिका हैं उनका नाम है ऋचा शर्मा। उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम ऑप्शन ए ऋचा शर्मा इज करेक्ट। सो नाउ लेट्स सी हाउ फार इज करेक्ट टू मेक द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज़ बी. ममता शर्मा। ममता शर्मा ने इस लोकप्रिय गीत को गाया है। इसको हम आइटम सॉन्ग के रूप में जानते हैं, ये किसी फिल्म का आइटम सॉन्ग था। सो सॉरी टू से कि योर नॉलेज रिगार्डिंग बॉलीवुड एंड इट्स कंटेंट्स हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड एज ट्रू एज करेक्ट। आप सही उत्तर नहीं दे पाए और आपके गलत उत्तर देने के कारण आपने खोए हैं 10 अंक, क्योंकि प्रश्न का सही उत्तर है ममता शर्मा। सो नाउ it is the turn of the next 5 contestants. Be alert now. आप 5 जो प्रतिभागी शेष बचे हैं मिस्टर रवि के अलावा सभी अलर्ट हो जाए और सबकी फिंगर्स अपने अपने बजर पर होनी चाहिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट इज़ contestant number 4 and she is मुस्कान शर्मा between us. She represents Lala Kedarnath Girls Inter College, Dhampur. So Muskan, now it is your turn. Just to make the answer of the remaining 2 questions. आपके हिस्से में अभी 2 क्वेश्चन शेष हैं और
ये तीसरा प्रश्न आपके लिए आपके स्क्रीन पर आता है। यह बी अलर्ट नाउ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन बॉलर इज नोन एज टर्मिनेटर? Which Indian bowler is known as Terminator? The four options before you are A. Yajwendra Chahal, B. Mohammad Sami, C. हरभजन सिंह, D. भुवनेश्वर कुमार। और प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके स्क्रीन पर आता है। किस भारतीय गेंदबाज को टर्मिनेटर नाम से जाना जाता है? प्रश्न बहुत सरल है और इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। A. यजवेंद्र चहल, B. मोहम्मद सामी, C. हरभजन सिंह और द भुवनेश्वर कुमार। आपको बताना है कि इसमें किस ऑप्शन को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। सर ऑप्शन जी भुवनेश्वर कुमार। अकॉर्डिंग टू मुस्कान ऑप्शन डी भुवनेश्वर कुमार इज द करेक्ट आंसर। उनके अनुसार भुवनेश्वर कुमार को भारतीय गेंदबाज को टर्मिनेटर के रूप से जाना जाता है। देखते हैं मुस्कान ने इस प्रश्न का कहाँ तक सही उत्तर दिया है। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, इट इज कॉल्ड हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के रूप में जाना जाता है। ये उनका एक उपनाम भी है हरभजन सिंह का। शेष खिलाड़ी उन्हें टर्मिनेटर के नाम से बुलाते हैं। अपने आप में इनको फिरकी गेंदबाज कहते हैं, हिंदी में फिरकी गेंदबाज। सॉरी टू से मुस्कान, बाय मेकिंग रॉन्ग आंसर द क्वेश्चन यू हैव लॉस्ट 10 मार्क्स। नो वे, द लास्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। चौथे प्रश्न का सही उत्तर दें और 20 अंक अर्जित करें। क्या बताएंगे आपको क्रिकेट में या किस खेल में विशेष रुचि है? सर क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फुटबॉल अच्छी लगती है। फुटबॉल अच्छी लगती है, अच्छा, बहुत अच्छा। विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध खेल है उसके बारे में कुछ बताएंगे? किस खेल को हम विश्व में सबसे प्रसिद्ध मानते हैं? हाँ सर फुटबॉल ही है सबसे पॉपुलर। मुस्कान ने बिल्कुल सही कहा। फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है और इसमें सबसे अधिक पैसा खिलाड़ी इसी खेल में अर्जित करते हैं, फुटबॉल में। सो एनीवे, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मुस्कान आपका चौथा अंतिम प्रश्न है। अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हुए सही उत्तर दें। और चौथा प्रश्न आपके सामने आता है यह, आफ्टर कश्मीर विच प्लेस गॉट द स्टेटस ऑफ स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 and 35A? Just be attentive to the question. After Kashmir, which place got the status of state after the removal of Article 370 and 35A? And the four options are A. Ladakh, B. Leh, C. Leh Ladakh and D. Jammu. प्रश्न का हिंदी रूपांतर देखें और उसको आराम से समझें। धारा 370 और 35A हटाने के बाद कश्मीर के साथ किस जगह को राज्य का दर्जा मिला? राज्य का दर्जा मिला। और आपके सामने 4 विकल्प हैं, आ लद्दाख, ब लेह, सा लेह लद्दाख और द जम्मू। आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प आपके अनुसार क्या हो सकता है। सर ऑप्शन ए लद्दाख। मुस्कान कहती हैं कि उनके विचार से सही प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है लद्दाख, आ ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट द आंसर अकॉर्डिंग टू मुस्कान। देखते हैं कि मुस्कान ने अपनी बुद्धि के आधार पर प्रश्न का उत्तर कहाँ तक सही दिया है, कहाँ तक नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। यस, लद्दाख इज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन। आपने बहुत समय तक इस विषय पर न्यूज़पेपर पर, टीवी स्क्रीन पर चर्चा रही, क्योंकि एक बहुत साहसिक प्रयास था जो केंद्र के सरकार के द्वारा किया गया जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाने का। और उसके बाद ही लद्दाख को एक नई स्टेट का दर्जा मिला। सो मुस्कान, आपको बहुत बहुत बधाई प्रश्न का सही उत्तर देने पर। और आपने अर्जित किए हैं 20 अंक इस प्रश्न का सही उत्तर देकर। सब एक बार फिर आपको इस चौथे प्रश्न का सही उत्तर देने पर बधाई। नाउ आफ्टर these 2 contestants in the second segment, the remaining 4 contestants, आपके 4 जो शेष प्रतिभागी हैं, अब आपको समय मिलता है बजर दबाने के लिए ताकि आप अपने शेष 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज़ contestant number 2 मिस्टर अनस who has put the buzzer first। उन्होंने बजर दबाने में सबसे अधिक स्फूर्ति और फूर्ति दिखाई है। जैसा कि प्रतिभागी नंबर 2 मोहम्मद अनस जो KS चिल्ड्रन एकेडमी कोतवाली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
उन्होंने बजर सबसे पहले दबाया तो ये सुअवसर उनको प्राप्त होता है कि वो अगले 2 प्रश्नों का उत्तर दें। अनस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपने तीसरे प्रश्न को स्क्रीन पर देखें और आपका प्रश्न आता है आपके समक्ष है। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉलिटिकल पार्टी had its government at the center in 2015 and the 4 options are A Congress, B BJP, C SP and D BSP। प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें और समझें। सन 2015 में केंद्र में कौन सी राजनीतिक पार्टी की सरकार थी? सरल प्रश्न है हिंदी में। इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। आ कांग्रेस, ब भाजपा, स सपा, द बसपा। आपको इस प्रश्न का सही विकल्प चुनकर हम सबको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या है। सर आंसर बी, भाजपा। मोहम्मद रंस कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। देखते हैं कि उनका ये प्रयास जो उन्होंने किया है ऑप्शन ब को बताने का कहाँ तक सार्थक होता है उनके अनुसार। एंड द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन इज यस, इट्स बी। सन 2014 से सन 2019 तक और अब सन 2019 से सन 2024 तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि 2015 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये सही उत्तर देकर उन्होंने अर्जित किए हैं अपने लिए 20 अंक। अनस, मैं जान सकता हूँ कि इस विषय में आप कितनी रुचि रखते हैं पॉलिटिकल साइंस में? सर ये मुझे पता था जब इलेक्शन हुए थे कि 10 साल से ये सरकार है, ये भाजपा, जब मैंने इलेक्शन हुए थे 2015। जी, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप समाचार पत्रों के और टीवी न्यूज़ के संपर्क में रहते हैं तो आपको आपके चारों ओर क्या हो रहा है, क्या गतिविधियाँ हो रही हैं देश में और विदेश में, इस सब का जानकारी आपको रहती है और आपका ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। तो देखिए आपके उस ज्ञान ने आपको आज 20 अंक पाने में सफलता दिलाई। आपको बहुत बहुत बधाई। बढ़ते हैं आपके चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सही उत्तर देकर अंक अर्जित करें इस आशा के साथ। देखिए अपना अगला प्रश्न। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्राइम मिनिस्टर सेलिब्रेटेड दिवाली विद आर्मी सोल्जर्स? विच प्राइम मिनिस्टर सेलिब्रेटेड दिवाली विद आर्मी सोल्जर्स? एंड 4 ऑप्शंस आर ए मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी राजीव गांधी। प्रश्न का हिंदी रूपांतर है कौन से प्रधानमंत्री ने देश के वीर जवानों के साथ दीपावली मनाई? और इसके 4 विकल्प हैं आ मनमोहन सिंह, ब नरेंद्र दामोदर दास मोदी, स जवाहरलाल नेहरू, द राजीव गांधी। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर, सही विकल्प आपके अनुसार क्या हो सकता है। सर आंसर बी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। According to Mohammad Anas, the correct option of the question is B, that is Narendra Damodar Das Modi. So let's see how far is correct to make the answer, and the correct answer is yes, it is B. आप जब भी हर वर्ष दीपावली का त्यौहार आता है आप सुनते होंगे कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा किसी न किसी फ्रंट पर जाकर वीर जवानों के साथ में अपनी दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, दीपावली मनाते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर ये जवान सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। इसी आशा के साथ वो इन्हीं के बीच में हमेशा दीपावली का पर्व मनाए जाते हैं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया और मोहम्मद अनस ऐसा सही उत्तर देकर आपने अर्जित किए हैं 20 अंक। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। So now is the turn of remaining 3 contestants। जो शेष 3 हमारे प्रतिभागी बच गए हैं अभी अपने अपने 2 शेष प्रश्नों का उत्तर देने से। अब ये सुअवसर उनके सामने आया है। सबके सब तैयार हों, अलर्ट हों बजर दबाने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज़ कंटेस्टेंट नंबर 6, दैट इज़ मिस्टर अब्दुल रहमान। उन्होंने बजर दबाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने सबसे पहले बजर दबाने सफलता पाई। तो अब उनकी बारी आती है अपने शेष 2 प्रश्नों का उत्तर देने पर सेकंड सेगमेंट में। अब्दुल रहमान तत्पर हों, तैयार हों अपने इन शेष 2 प्रश्नों का सही उत्तर देकर
और अधिक अंक अर्जित करने के लिए। एंड द नेक्स्ट मेरी क्वेश्चन appears on the screen is which among these is the rabi crop? Read the question. And the four options are A rice, B wheat, C sugarcane and D maize. और इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ये आपने सुना होगा रबी के बारे में। और इसके चार विकल्प हैं, अ चावल, ब गेहूँ, स गन्ना और द मक्का। आपको बताना है कि इसमें कौन सी सही फसल रबी की फसल कहलाती है। चावल। Yes, Abdul Rahman says that yes, according to his knowledge, the correct option of the question is A, that is rice. उनके अनुसार चावल इसका सही विकल्प है। देखते हैं कि उन्होंने कहाँ तक इस रबी की फसल को बताया है। एंड द करेक्ट आंसर इज बी wheat. गेहूँ रबी की फसल कहलाती है। तीन फसलें हैं, सबने पढ़ा होगा, रबी, खरीफ और जायद, तीन फसलें हैं। और रबी की फसल गेहूं की फसल होती है जो आजकल आपने देखा है बोई गई है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। ये फसल रबी की फसल कहलाती है। तो अब्दुल रहमान, सॉरी टू से दैट बाय मेकिंग द रॉन्ग आंसर यू हैव लॉस्ट 10 मार्क्स। कोई बात नहीं, अभी एक अंतिम प्रश्न आपके समक्ष है, सही उत्तर दें और अधिक अंक अर्जित करने में सफलता पाएं। आपका अंतिम चौथा प्रश्न आपके सामने आता है, यह How many seats were captured by Samajwadi Party? How many seats were captured by Samajwadi Party in 2019 Parliament election? And the four options are A7, B5, C10 and D3. प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़िए और समझिए। 2019 सन 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटों पर कब्जा जमाया? और इसके चार विकल्प आपके सामने हैं, A 7, ब 5, स 10 और द 3। आपको बताना है कि आपके अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार इसमें सही विकल्प कौन सा हो सकता है। सर लाइफलाइन यूज कर। आपके साथ साथी के रूप में कौन आए हैं? अब्दुल रहमान के चाचा जी उनके साथ हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि वह सही उत्तर जानने में अब्दुल रहमान की सहायता करें। B5। अब्दुल रहमान ने अपने चाचा जी से विचार विमर्श किया इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए। और इस आफ्टर मेकिंग द डिस्कशन कंसल्टेंट विद हिम, सो नाउ ही कम्स टू द ऑप्शन दैट इज बी। उनके अनुसार ऑप्शन बी 5 सही उत्तर है। देखते हैं कि उनके चाचा जी ने अंक पाने में उनकी कहाँ तक सहायता की है। सो वी शुड मूव टू द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज यस, इट इज द करेक्ट आंसर। धन्यवाद उनके चाचा जी को, उन्होंने अब्दुल रहमान की मदद की और सही उत्तर देने में उसको भरपूर सहायता की। अब्दुल रहमान, आपका ये उत्तर उनकी सहायता से बिल्कुल सही उतरा और सही उत्तर देकर आपने अर्जित किए 20 अंक। आपको बहुत बहुत बधाई। अब जो शेष प्रतिभागी हैं कृपया सचेत हो जाएं और उनकी उंगली बिल्कुल तत्पर होनी चाहिए अपने बजर दबाने के लिए, ताकि उनको अपने शेष 2 प्रश्नों का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त हो। और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज़ कंटेस्ट नंबर 5, मिस्टर नईमुद्दीन, उन्होंने बजर दबाने में सफलता पाई। तो अब ये सुअवसर प्राप्त होता है नईमुद्दीन को कि वो अपने 2 प्रश्न जो शेष हैं उनकी प्रश्नावली के, उसका उत्तर दें। नईमुद्दीन, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है, व्हेन वाज फ्रीडम फाइटर शहीद ऊधम सिंह बॉर्न? व्हेन वाज फ्रीडम फाइटर शहीद ऊधम सिंह बॉर्न? एंड द 4 ऑप्शंस आर A 1899, B 1895, C 1929, D 1919. एंड द हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन इज, स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह का जन्म कौन से सन में हुआ था? और ये 4 विकल्प हैं जिसमें आपको सही उत्तर बताना है। विकल्प अ 1899, विकल्प ब 1895, विकल्प स 1929 और विकल्प द 1919। आपको बताना है कि आपकी बुद्धि अनुसार इसमें सही विकल्प कौन सा है। सर ऑप्शन दें, सन 1919। मिस्टर नईमुद्दीन कहते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान से इसका सही उत्तर खोजा
और उनके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द सन 1919। देखते हैं कि उनका ज्ञान कहाँ तक सार्थक सिद्ध होता है या नहीं। एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन इज आंसर नंबर ए, दैट इज 1899। शहीद ऊधम सिंह का जन्म सन 1899 में हुआ था। सो मिस्टर नेमुद्दीन, सॉरी टू से योर आंसर इज नॉट करेक्ट एंड दैट्स व्हाई यू हैव लॉस्ट 10 मार्क्स। आपने 10 अंक खोए क्योंकि आपने प्रश्न का गलत उत्तर दिया। बढ़ते हैं आपके अंतिम चौथे प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए और इसका सही उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। और आपका चौथा प्रश्न है यह, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? एंड द 4 ऑप्शंस आर ए 1912, बी 1911, सी 1950 एंड डी 1947। प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़िए और समझिए। भारत देश का राष्ट्रीय गान पहली बार कौन से सन में गाया गया था? प्रश्न हिंदी में सरल है और इसके 4 विकल्प हैं। अ सन 1912, ब सन 1911, स सन 1950 और द सन 1947। आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ष है जब भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। सर 1947। नेमुद्दीन कहते हैं कि उनके अनुसार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है द, उनके अनुसार सन 1947 में हमारे देश का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर है बा, ऑप्शन बी 1911 इज द करेक्ट आंसर। सो नेमुद्दीन, वंस अगेन यू मेड द रॉन्ग आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया और इसी कारण आपने खो दिए हैं फिर 10 अंक, और आपके 4 प्रश्नावली का जो चरण है वह पूरा होता है। एंड सो नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ लास्ट कंटेस्टेंट नंबर 3 मिस्टर मनीष, जस्ट टू मेक हिज लास्ट 2 आंसर्स। उनको अब उनके जो 2 शेष प्रश्न हैं उसका उत्तर देने का पारी अब उनकी है। उनके समक्ष अब उनके बचे हुए 2 प्रश्न आएंगे। मनीष, अब अपना ध्यान अपने स्क्रीन पर केंद्रित करें। मनीष, अब आपके समक्ष आपका तीसरा प्रश्न आता है। अपना ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित करते हुए प्रयास करें इसका सही उत्तर देने का। एंड द क्वेश्चन अपीयर्स देयर इज, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, सॉन्ग हैज बीन पिक्चराइज्ड ऑन विच एक्टर? सॉन्ग हैज बीन पिक्चराइज्ड ऑन विच एक्टर? एंड द 4 ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी जावेद जाफरी, ऑप्शन सी रवि बहल एंड ऑप्शन डी सुमित सहगल। और इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने आता है ये, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी, यह गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? और 4 अभिनेताओं के नाम है अ नागार्जुन, ब जावेद जाफरी, स रवि बहल और द सुमित सहगल। आप हम सबको बताएं कि आपके अनुसार इसमें सही विकल्प कौन सा है? जावेद जाफरी। मनीष कहते हैं कि ये गाना जावेद जाफरी बी विकल्प पर फिल्माया गया है। देखते हैं कि मनीष का बॉलीवुड से संबंधित ज्ञान कहाँ तक उचित है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, इट इज़ डी सुमित सहगल। यह गीत सुमित सहगल पर इस फिल्म में फिल्माया गया है एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मनीष, आप प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए, सही उत्तर देने में असफल रहे, इसलिए आपको खोना पड़ता है 10 अंक। आपने 10 अंकों से हाथ धोया। ये अंतिम प्रश्न आपके सामने है। पूर्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए इसका सही उत्तर दें और 20 अंक अर्जित करने में सफलता पाएं। और ये प्रश्न मनीष आपके सामने आपके स्क्रीन पर आता है। यह, फॉर हाउ मेनी टाइम्स द प्रेजेंट MLA ऑफ धामपुर मिस्टर अशोक राणा हैज़ बीन इलेक्टेड एज MLA? फॉर हाउ मेनी टाइम्स द प्रेजेंट MLA ऑफ धामपुर मिस्टर अशोक राणा has been elected as MLA? and the 4 options are A4, B3, C2 and D1। प्रश्न का हिंदी रूपांतर देखें। धामपुर विधान सभा के विधायक अशोक राणा अभी तक कितनी बार विधायक चुने गए हैं? आपको इन 4 विकल्पों से सही विकल्प बताना है। पहला विकल्प है 4, ब 3, स 2 और द 1। आपको बताना है कि वो कितनी बार इस विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। सर 3।
मनीष कुमार कहते हैं कि अशोक राणा अभी तक 3 बार अपने जीवन में 3 बार विधायक चुने गए हैं। देखते हैं उनका ये राजनीति का ज्ञान कहाँ तक उनको अंक पाने में सफलता दिलाता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज yes, the correct answer. Yes, after the complete questionnaire consisting of 24 questions, now all the contestants have participated to make their answer of the 4 questions. So now I should tell you all what you gained, what you lost. The very first contestant, Mr. Ravi, he has got no success to gain points, and his tally is -10. Contestant number 2, Mohammad Anas. Contestant number 3, Mr. Manish. Contestant number 4, Muskan. And contestant number 5, Mr. Naimuddin. All of them have succeeded to earn 20 points each. They are having सबके 20-20 अंक हैं। प्रतिभागी नंबर 2, 3, 4 और 5 मोहम्मद अनस, मनीष कुमार, मुस्कान शर्मा और नईमुद्दीन, इन सबके 20-20 अंक हैं। हमारे छठे प्रतिभागी मिस्टर रहमान, ये सक्सेड टू अर्न 50 पॉइंट्स, तो अ गुड चीयर फॉर हिम। 50 अंक पाकर राउंड की तालिका में, अंक तालिका में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने 50 अंक अर्जित किए हैं। तो क्योंकि हमें इस 6 प्रतिभागियों में से केवल 4 प्रतिभागियों का चयन करना है, जो अंतिम चरण, दैट इज द फिनाले राउंड। इन 4 प्रतिभागियों में से 3 प्रतिभागियों का अगले चरण के लिए चुना जाना आवश्यक है। एक प्रतिभागी इसी चरण में रह जाएंगे। तो सभी प्रतिभागियों को एक एक अतिरिक्त प्रश्न दिया जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ से निर्देश करूँगा तो ये 4 प्रतिभागी नंबर 2, 3, 4 और 5 ये अपना बटन दबाएंगे और उसी को ये अवसर मिलेगा प्रश्न का उत्तर देने का। आपका समय शुरू होता है अब। प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर मनीष, इन्होंने बजर दबाने में सफलता पाई। तो मनीष, एक अतिरिक्त प्रश्न आपके समक्ष आता है अब, क्योंकि ये डू और डाई का प्रश्न है। अंकों के आधार पर आप आगे बढ़ें, तो अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करते हुए इस प्रश्न का उत्तर दें। और प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है यह, एंड द क्वेश्चन इज विच थर्ड पार्टी बिसाइड्स शिवसेना एंड कांग्रेस हैज फॉर्म गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र? And the 4 options are A. BSP, B. MNC, C. जनता दल and D. NCP। इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर देखें और समझें। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस के अलावा तीसरी कौन सी पार्टी है जिसके गठबंधन से सरकार बनी? और आपको इन 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन छांटना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अ बसपा, ब MNC, सा जनता दल और द NCP। आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा उत्तर आपके अनुसार सही है। सब MNC। मनीष कहते हैं कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ब NNC। उनके अनुसार MNC इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखते हैं कि उन्होंने कहाँ तक सफलता पाई सही उत्तर देने में। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष शरद पवार हैं। काफ़ी बबेला, काफ़ी हल्ला मचा था इस मुद्दे पर। अगर आप न्यूज़पेपर और टीवी देखते हैं तो नेशनल कांग्रेस पार्टी ये वो पार्टी है जिसने इसको शिवसेना को समर्थन दिया, और जिसके समर्थन से शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। सो मनीष, मुझे कहते हुए अफसोस है कि आपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया और इस कारण आपको खोने पड़े 10 अंक। कोई बात नहीं, आपने पूर्ण प्रयास किया, आपके प्रयास सराहनीय हैं। हम मनीष के प्रयासों के लिए एक बार उनका उत्साहवर्धन करें। अब मनीष के उत्तर देने के बाद हमारे समक्ष बचते हैं 3 प्रत्याशी। कंटेस्ट नंबर 2 मिस्टर अनस, कंटेस्ट नंबर 4 मुस्कान शर्मा एंड कंटेस्ट नंबर 5 मिस्टर नईमुद्दीन। उनका अब ये बारी है, और जो भी इन 3 में से बजर दबाएगा उसी को अगले प्रश्न का उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा। सभी अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं, और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज़ कंटेस्ट नंबर 2 मोहम्मद अनस। उन्होंने बजर दबाने का सफल प्रयास किया।
तो अब बारी आती है मोहम्मद अनस की। तो मोहम्मद अनस स्क्रीन पर अपना ध्यान दें और आपका प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर आपके लिए यह है। एंड द वेरी क्वेश्चन इज वेयर डिड द इंग्लिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। प्रश्न समझें, वेयर डिड द इंग्लिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एंड द फोर ऑप्शंस आर ए कोलकाता, बी सूरत, सी मुंबई एंड डी विशाखापट्टनम। इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें और समझें। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? और इसके 4 विकल्प हैं, आ कोलकाता, बा सूरत, सा मुंबई और दा विशाखापट्टनम। अपने ज्ञान का पूरा प्रयोग करें और अपने उस ज्ञान के आधार पर बताने का प्रयास करें कि इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। सर आंसर डी विशाखापट्टनम। मोहम्मद अनस कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने विशाखापट्टनम में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी। देखते हैं उनका ये ऑप्शन डी उनको अंक पाने में कहाँ तक सफलता दिलाता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज़ बी। सूरत में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले भारतवर्ष में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। सो अनस, सो सॉरी टू से यू कुड नॉट मेक द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो बाय मेकिंग द रॉन्ग आंसर यू लॉस्ट 10 मार्क्स। आपने 10 अंक खो दिए प्रश्न का गलत उत्तर देने के कारण। क्योंकि अनस ने अपना प्रयास किया तो इसीलिए सब लोग एक बार अनस का उत्साहवर्धन करें। अब हमारे समक्ष विभागीय नंबर 4 और विभागीय नंबर 5 कुमारी मुस्कान और नईमुद्दीन शेष हैं। दोनों अपना ध्यान केंद्रित करें अपने बजर पर और जैसा ही मैं कहूँगा अपना यहाँ से निर्देश दूंगा वो दोनों में से बजर दबाने का पहला प्रयास करें और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज़ कंटेस्टेंट नंबर 4। मुस्कान ने बजर दबाया है तो मुस्कान को अवसर मिलता है इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने का। मुस्कान, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है यह। इन हुज कोर्ट वाज चाणक्य अ मिनिस्टर। इन हुज कोर्ट वाज चाणक्य अ मिनिस्टर एंड द 4 ऑप्शंस आर ए एम्परर गुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्र गुप्ता एंड डी नन ऑफ दीज। इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें। हिंदी रूपांतर है चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे। बहुत प्रसिद्ध नाम है, सबने सुना है। और इसके 4 विकल्प हैं, अ सम्राट गुप्त मौर्य, बा चंद्रगुप्त मौर्य, सा समुद्रगुप्त, द इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। सर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। बड़े विश्वास के साथ मुस्कान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। मुस्कान कहती हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। देखते हैं कि उनका विश्वास उनको अंक दिलाने में कहाँ तक सार्थक सिद्ध होता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, यस, शी मेड अ वेरी करेक्ट मूव एंड आंसर इज वेरी करेक्ट। चाणक्य एक विश्व प्रसिद्ध नाम है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे और सभी ने उनके विषय में बहुत कुछ पढ़ा है। उन्हें विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दिमाग कहा जाता है। आज तक के मानव इतिहास में उनसे बड़ा राजनीतिक दिमाग कोई नहीं हुआ है और इसीलिए वो जाने जाते हैं। और उनकी एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। सो बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर मुस्कान ने अर्जित किए हैं 20 अंक। अब अंत में यह अवसर प्राप्त होता है मिस्टर नईमुद्दीन जो हमारे 5 प्रतिभागी हैं उनके समक्ष भी एक प्रश्न रखा जाएगा और बाकी प्रतिभागियों की तरह से उनको भी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है। तो मिस्टर नईमुद्दीन अलर्ट हो जाएं और अगला प्रश्न आपके समक्ष आता है यह। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज फादर। यू हैव टू पुट द नेम ऑफ अ फादर एंड द 4 ऑप्शंस आर ए लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी नन ऑफ दीज। प्रश्न का हिंदी रूपांतर है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पिता का क्या नाम था। और इसके 4 विकल्प हैं, आ लाल बहादुर शास्त्री, बा महात्मा गांधी, सा जवाहरलाल नेहरू, द इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें सही ऑप्शन चुनकर बताना है कि आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। से जवाहरलाल नेहरू। नईमुद्दीन कहते हैं कि उनके अनुसार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह द जवाहरलाल नेहरू, ये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पिता का नाम था उनके अनुसार। देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। यस, जवाहरलाल नेहरू वाज द नेम ऑफ
द लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फादर, और सही उत्तर देकर मिस्टर नईमुद्दीन ने अर्जित किए हैं 20 अंक। इस प्रश्नावली प्रश्नोत्तर के चरण के बाद मैं आप सभी को ये बताऊं कि आप लोगों ने अंक पाने या खोने में कहां पर आप लोग रहे। हमारे पहले प्रतिभागी मिस्टर रवि -10 पॉइंट के बाद इस अंक तालिका में सबसे नीचे हैं। हमारे दूसरे प्रतिभागी मिस्टर अनस और तीसरे प्रतिभागी मिस्टर मनीष यह 10-10 अंक पाकर अभी दोनों बराबरी पर हैं। प्रतिभागी नंबर 4 मुस्कान शर्मा और प्रतिभागी नंबर 5 मिस्टर नईमुद्दीन, यह दोनों प्रतिभागी 40-40 अंक पाकर समान श्रेणी में हैं अंक तालिका में। और हमारे जो अंतिम प्रतिभागी हैं मिस्टर अब्दुल रहमान, यह 50 अंक पाकर इस अंक तालिका में सर्वश्रेष्ठ अंक पर हैं। सभी के लिए ताली। क्योंकि अभी हमारे दो प्रतिभागी नंबर 2 मिस्टर अनस और प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर मनीष 10-10 अंक पाकर समान है, और हमें इन दो में से एक प्रतिभागी चुनना है जो अगले चरण हमारे फाइनल राउंड पे जाएंगे। इसके लिए मैं आप दोनों प्रतिभागियों के समक्ष एक प्रश्न रखूंगा, और प्रश्न रखने के बाद तब मैं आपको निर्देश दूंगा बजर दबाने का। तो आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह वेयर डिड लेट प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री डाई? Where did late Prime Minister Lal Bahadur Shastri die? And the 4 options are A. Tokyo, B. Uzbekistan, C. शिमला, D. ताशकंद। प्रश्न का हिंदी रूपांतर है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसके 4 विकल्प हैं आपके सामने, A. टोक्यो, B. उज्बेकिस्तान, C. शिमला, D. ताशकंद। अब ये दो प्रतिभागी जो प्रतिभागी नंबर 2 और 3 हैं, मेरा निर्देश पाने के बाद बजर दबाएंगे और आपका समय शुरू होता है अब। ये प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर मनीष, उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए बजर दबाया। मिस्टर मनीष, नाउ इट्स योर टर्न टू मेक द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप बताएं कि इन 4 विकल्प में आपके अनुसार सही विकल्प कौन सा है? सर ताशकंद। मिस्टर मनीष कहते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर उनकी बुद्धि और उनके ज्ञान के अनुसार ऑप्शन द, जो ताशकंद को कहते हैं कि उनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। सो लेट्स सी वेदर आंसर इज करेक्ट और नॉट। देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर, और सही उत्तर है डी, ताशकंद। ही इज वेरी राइट टू से दैट लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन ताशकंद। उनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी, और सही उत्तर देकर मनीष सफल हुए 20 अंक अर्जित करने में। मनीष को बहुत बहुत बधाई। प्रश्नोत्तरी का ये चरण समाप्त हुआ, एंड इट इज द राउंड ऑफ प्री फाइनल, एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स मेड बाय दीज 6 कंटेस्टेंट हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वेरी टर्न। आफ्टर दिस राउंड जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद तुरंत उपस्थित होंगे। आप सभी कहीं न जाएं, प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। इस प्री फाइनल के राउंड में सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने अपने ज्ञान और बुद्धिबल के आधार पर अपने से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण और सार्थक प्रयास किया। लेकिन अंकों की दौड़ में इन 6 प्रतिभागियों में से 4 प्रतिभागी आगे आने में और अगले चरण में पहुंचने में सफल हुए, लेकिन 2 प्रतिभागी अंकों की दौड़ में पिछड़ गए और उन्हें इसी चरण में रहने से संतोष करना पड़ेगा। मैं बताता हूं कि हमारे इस अंक तालिका में प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर रवि कुमार सिंह और प्रतिभागी नंबर 2 मिस्टर अनस, ये अंकों की दौड़ में और प्रतिभागियों से कंप्लीट नहीं कर पाए, और इसलिए उनको इसी चरण में रहना पड़ा।
and I'm sorry to say that they could not succeed to go to the next round, that is our finale round. So even then अपने इस प्रतियोगिता में उन हजारों विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण होकर फिर पहले चरण क्वार्टर फाइनल और दूसरे चरण सेमीफाइनल को उन्होंने पार किया सफलतापूर्वक। इसके लिए हम सभी उनको करताल ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और जैसा ये कहा जाता है कि इन एवरी कॉम्पिटिशन, इन एवरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज टू पार्टिसिपेट। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया और वो इस सेमीफाइनल के बाद प्री फाइनल राउंड तक पहुंचने में सफल हुए। अब बाकी 4 प्रतिभागी, हमारे प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर मनीष, प्रतिभागी नंबर 4 मुस्कान शर्मा, प्रतिभागी नंबर 5 मिस्टर नईमुद्दीन सैफी और प्रतिभागी नंबर 6 मिस्टर अब्दुल रहमान, यह अंक तालिका में आगे निकले। उन्होंने बढ़ चढ़कर प्रश्नों का सही उत्तर देकर अधिक अंक अर्जित किए एंड बाय वर्च्यू ऑफ द marks they secured, marks they earned here in this pre-final round, they have come to the final round. So clapping for them. ये 4 प्रतिभागी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए अपने ज्ञान के आधार पर इस अंतिम चरण जो हमारा इस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड है उसमें पहुंचने में सफल हुए। इन चारों प्रतिभागियों को संस्कृति प्रोडक्शन की ओर से और अब तक चैनल की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से अपने बुद्धि चातुर्य बुद्धि बल के आधार पर आप फाइनल राउंड में भी बढ़ चढ़कर अंक पाएं, ये हम सबकी आपके लिए कामना है। ये हमारे 2 प्रतिभागी जो अंतिम चरण में पहुंचने में सफल नहीं हो पाए, उनके उत्साहवर्धन के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर रविकांत सिंह से यहाँ मंच पर आएँ और हमारे बीच में विराजमान हैं एक हमारे शहर की बहुत जानी मानी शख्सियत डिग्नेटरीज मिस्टर भूपेश शर्मा जो हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो तहसील प्रभारी हैं पब्लिक इमोशन समाचार पत्र के। मेरा उनसे आग्रह अनुरोध है कृपया आएं और इस बच्चे को स्मृति चिन्ह देकर इस बालक को इसका उत्साहवर्धन करें। श्री भूपेश जी। धन्यवाद भूपेश जी। इसी क्रम में मेरा आग्रह है अभी तक चैनल के डायरेक्टर श्री शरद राजवंशी जी से भूपेन जी को एक स्मृति चिन्ह देकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री शरद जी। धन्यवाद शरद जी। मेरा पुनः आग्रह है अभी तक चैनल के डायरेक्टर श्री शरद जी से प्रतिभागी नंबर 2 मोहम्मद अनस को स्मृति चिन्ह देकर उसका उत्साहवर्धन करें। श्री शरद जी। आग्रह है मेरा मोहम्मद अनस से कृपया मंच पर आए। सो आफ्टर दिस राउंड अंततः हम सफल हुए इन 4 योद्धाओं को पाने में, जिसमें प्रतिभागी मनीष कुमार, ही इज फ्रॉम MQ इंटर कॉलेज सुहारा, मिस मुस्कान शर्मा, शी इज फ्रॉम लाला केदारनाथ बालिका विद्या मंदिर धामपुर, और तीसरे प्रतिभागी हैं मिस्टर नईमुद्दीन सैफी जो इंडियन पब्लिक स्कूल जलीलपुर से हैं, और अंतिम और चौथे प्रतिभागी हैं हमारे मिस्टर अब्दुल रहमान एंड इज फ्रॉम सिमरा इंटरनेशनल स्कूल शेरकोट। ये 4 प्रतिभागी अगले चरण अंतिम चरण दैट इज आवर फाइनल राउंड, दे हैव सक्सीडेड टू गेट दिस सीट देयर इन द फाइनल राउंड। और देखते हैं कि ये 4 प्रतिभागी कहाँ तक अपनी अपनी विद्वता के आधार पर इस फाइनल राउंड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने में सफल होते हैं। अब देखते हैं कि इन 4 प्रतिभागियों में से कौन प्रतिभागी वो भाग्यशाली होगा जो बनेगा इस अंतिम चरण में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी, जो बनेगा विनर जीनियस कॉन सीजन 3 का। देखते रहिए अभी तक जीनियस कॉन सीजन 3।